बिल्कुल। Sure. Good evening, Dr. Hilalal, Indian Administrative Service, Additional Mission Director at National Health Mission Uttar Pradesh, and candidates of the Winter School at IIM Ranchi. We are pleased to have Dr. Hilalal amidst us. He's an IS officer with more than 26 years of experience as a civil servant and is currently posted as Additional Mission Director of National Health Mission at Uttar Pradesh. And he's also the additional project director in UP State AIDS Control Society. He completed his MTech from Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi. Now it's known as IIT BHU, and he joined NTPC in 1993. Later on, he joined the UP Civil Services in 1994, and then he was awarded the Indian Administrative Service. He completed his PhD in April 2020, and he aims to continue working in the field of education as well as research. And he wishes to keep in touch with studies through his day-to-day work and his research and academic work. Uh, he has also earned a certificate of advanced study leadership in international and non-governmental organizations, and an MPA degree from Maxwell, USA. He went to USA to attend a one-year training program on public administration, conflict resolution, and leadership of international and non-governmental organizations. He has a vast array of experiences in working in his different capacities, including as a subdivisional magistrate and additional divisional magistrate, CDO at district magistrate, and his last posting prior to his posting as additional mission director at National Health Mission Uttar Pradesh was as the district magistrate of the district of Banda in Uttar Pradesh, where he did revolutionary work to improve the condition of the people living in the district. We at the Atal Bihari Vajpayee Center and at IIM Ranchi are very proud to have him with us and would like to invite him for the winter school and thank him again for honoring our request to attend this winter school and speak in front of the candidates. I believe they will benefit immensely from this particular lecture by Dr. Hilalal. Sir, the floor is all yours. We are here to assist you during the presentation and to move ahead. Thank you. Thank you. At very outset, I will thank you, IIM Ranchi and your this center, and particularly Professor Nitin Singh and Anshuman Hazarika ji for connecting, coordinating, and facilitating this session. So I welcome all the participants in this session, and this whole talk session is divided into 4-5 parts. First, I will discuss briefly about the leadership. After leadership, I will discuss about the governance and policy, and thereafter I will discuss 3 cases which I experimented in district Bada to apply these 3, and finally I will discuss a innovation, revolutionary innovation in making name is model village. Model village is nothing but it is how to manage the activities of a village in order to convert agri into agri business. So as Professor Hazarika introduced me, before I joined this current position, I had been in district Bada as a district magistrate for 1.5 years. I did more than 20 experiments, 20 initiative I took, and I got amazing results without taking any extra finance, any extra support from any government or from any level. While doing all these experiments as a district magistrate, I applied 3 basic formula of, and that was my own generated, or you can say cultivated, evolving thought process. First was how to mobilize
how to motivate, how to inspire, how to empower the masses in order to take their active and productive participation in all the activities. First thing, participation, active and productive participation. Second, I took all the initiative in which there is either, it is either no caste or low caste. So I took steps or activities or initiative which involve either no caste or low caste. That was the second mantra. And third was how to pool or how to converge the available resources, inputs and funds in order to get the many events, many sessions, many initiative, and we have good results. To apprise about all these, I wish to show a video. I wish to play a small video so that the audience, participants, our esteemed participants may have a feel what I said by now. So I would like I would request please play the video Bada Ki Tarakki, and that video is given by a private person who was coordinator Mr. Parveen Chauhan. After my transfer, he consolidated and made this video. Okay, thank you. Please play the video. First video. सपना दिखाया जो वो सच कर दिया, उम्मीदों में नया जोश भर दिया। सपना दिखाया जो वो सच कर दिया, उम्मीदों में नया जोश भर दिया। बुलंद हौसला मजबूत इरादा पूरा कर दिया, हर एक वादा। बुलंद हौसला मजबूत इरादा पूरा कर दिया हर एक वादा। हर घर में आई खुशियों की फिर से नई एक बहार, हर घर में आई खुशियों की फिर से नई एक बहार। बांदा की तरक्की बेमिसाल, बांदा की तरक्की बेमिसाल। इनोवेशन स्टार्टअप समिट, बांदा की अमिट पहचान, विज्ञान की अलख जगाई, बांदा की बढ़ाई शान। लक्ष्य किया पूरा 90+ मतदान का, खूब बढ़ाया मान अपने लोकतंत्र का। उम्मीद जगी हिम्मत बढ़ी मिल गई विकास की राह, बांदा की तरक्की बेमिसाल, बांदा की तरक्की बेमिसाल। कुआं तालाबों के संरक्षण का महत्व सबको समझाया, जल बचाओ और वृक्षारोपण का अभियान चलाया। प्रेरित किया जन जन को योग अपनाने को, दिन रात की मेहनत जागरूकता फैलाने को। रंग लाई कोशिशें आपकी, बांधा हुआ खुशहाल, बांदा की तरक्की बेमिसाल, बांदा की तरक्की बेमिसाल। बांदा सुपोषण, बांदा पर्यटन,
अधिकारी ज्ञानार्जन यात्रा नेकी की दीवार झोला एक पॉलिथीन मुक्त छात्र निर्माण संवाद किसान विकास भवन भ्रमण और जेल सुधार इन अभियानों से किया बाधा का नवाचार इन अभियानों से किया बांधा का नवाचार बाधा की तरक्की बेमिसाल बाधा की तरक्की बेमिसाल बाधा की तरक्की बेमिसाल बाधा की तरक्की बेमिसाल Thank you. So you have seen this clip. It is a small video. This video tried to apprise the activities done during my that tenure as district magistrate in 1.5 years. So as I discussed earlier, first I would like to discuss briefly about the leadership. I took it from Harvard Business School that if you act in a way that inspires, encourage, engage, empower others, you are a leader. So very in brief, if a person inspires, encourage, engage, empower others, he is having the basic qualities of the leader. And in that paper, I have read leadership qualities and skills. That is the paper which I read of Harvard Business School. They have given that emotional intelligence. A leader should have emotional intelligence, and it has 5 subcategories also. Likewise, engagement, employees engagement, public engagement. So engagement is another aspect of the effective leaders. It has also 6 subcategories. Negotiation, we every day every moment negotiate with other parties in order to discharge our duties, and negotiation has 7 subcategories, and decision making is the prime for a effective leaders, and decision making has 8 subcategories. Organization change management, we use to improve our organization, so we must know how to manage effectively any change being sought or done in the organizations, and it has 5 subcategories. Next please. Next slide. Okay, this slide shows what is the difference between a leader and a manager. Management, leadership and management, labor, manager and leader, these are 3 categories. The lowest is labor and the highest is leader. For example, if we see with respect to purpose, leadership, what they think about, they deal with changes, while manager will deal with the complexity. If we see with respect to focus, a leader will thinking, change and innovation, doing the right things. What a manager will think with regard to focus, doing execution and implementation, doing things right. So this is a brief difference between a leader and manager, thinking qualities and skills. So this I have taken just to differentiate between leadership and management. Next please. Next topic is governance. Actually, governance does not have any exact definition. There is no one definition which is fit for all the situation and places. So definition of governance keep changing with situation, time, position. So just to mention one, I have taken one definition given by the UNDP. Governance means the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented. So this is a very simple
definition given by United Nations Development Program. So governance, and we people are running behind good governance. We wish to word we wish to add word good before governance in order to get good governance, whether it is public management, whether it is private management, everywhere good governance is required. So how to define good governance? So good governance has 8 characteristics, and these 8 characteristics is prescribed by the United UNDP, and it is widely accepted and practiced world around: inclusive, rule of law, transparency, accountability, responsiveness, conscious oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency. If these characteristics will be in our governance, then it will be towards good governance. And degree of these 8 characteristics will decide the degree of governance towards good governance. So this is very simple in brief regarding the governance and good governance. Next, please. Public policy. We are talking about the policy. A policy is a deliberate system of principles to guide decision and achieve rational outcomes. Public policy is whether governments choose to do or not to do. This is a very simple डिफिनीशन ऑफ द पॉलिसी. फॉर एग्जाम्पल, मैं बांदा में जब कलेक्टर होके गया तो मेरे पास ये जो सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं जनप्रतिनिधि लोग, एमएलए एमपी लोग, सिक्योरिटी गार्ड देना होता है, तो वो जिलाधिकारी को अधिकार है कि जिलाधिकारी 3 महीने के लिए सिक्योरिटी गार्ड देते हैं. मैंने एक पॉलिसी अपनाई, क्योंकि पुलिस की संख्या कम है, तो हमने एक पॉलिसी अपनाई, मैं किसी को सिक्योरिटी गार्ड नहीं दूंगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड लेने के पीछे पंप एंड शो ज्यादा है और थ्रेट कम है. और हमने अपने जो रिपोर्ट आती थी, मैंने बता दिया कि मेरी ये पॉलिसी है, अगर एक्चुअल थ्रेट है तब तो दिया जाएगा, लेकिन पंप शो के लिए मैंने एक अपना वहां एक लोकल पॉलिसी ये बनाई. तो पॉलिसी में भी फॉर ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ए पब्लिक पॉलिसी, इट इज ए प्राइवेट पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ इंडिविजुअल आल्सो. तो ये एक गाइडलाइन होती है पॉलिसी, जिससे कि लोगों को डिसीजन करने में आसान होता है, आउटकम मिलने में आसान होगा. और ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि पॉलिसी की ऐसी पॉलिसी मत बना दो कि दूसरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट हो और दिक्कत आए. सो दिस इज इन वेरी ब्रीफ पॉलिसी. विदाउट पॉलिसी हेल्प अस in governance in getting good results. That's why we frame the policy, we use the policy. Next, please. These are 3 cases. What first is water conservation management, jail reform, and how to increase voting percentage in Lok Sabha election 2019. I have taken these 3 case studies to see how leadership, policy, and governance I applied in these 3 cases in order to get the amazing results without taking any extra from any resource or any level. As I said at very outset during my introduction, that I applied 3 formula: how to take participation, how to convert the resources, and how to take the steps which is either low cost or no cost. These 3 formulas I applied in all the activities and programs. Next, please. देखिए, ये लिखा है भूजल बढ़ाओ पेयजल बचाओ. ये हिंदी में, अंग्रेजी नहीं था, हिंदी में ही. भूजल बढ़ाओ, व्हाट? भूजल, जमीन का जो भूजल है उसको बढ़ाना है, और पेयजल बचाओ, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बचाना है. तो इसके लिए बांदा में चूंकि पानी की बड़ी क्राइसिस है, और की क्राइसिस की वजह से
और एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूंगा कि जो बांदा की इकोनॉमी है दैट इज एग्री इकोनॉमी। वहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, टोटल वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो एग्री बेस्ड है। अगर हम एग्री को इम्प्रूव कर ले गए तो वहाँ के लोगों के चेहरे पे खुशहाली आएगी, लोग धनी होंगे, उनका इनकम बढ़ेगा। तो इस सब चीजों को करने के लिए पानी उसमें एक बहुत बड़ा बाधा था। पानी की समस्या होने की वजह से मुझे तो यहाँ तक बताया गया कि कई लोगों की शादियां भी नहीं हुई इसी ग्राउंड पे, कुछ गांव के लोगों की, क्योंकि उस गांव में पानी की समस्या है। तो लोग कहते थे कि इस गांव में शादी कर देंगे तो हमारे बच्चों को पानी की समस्या होगी, इसलिए शादी नहीं हुई। ये इसका एक बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट मुझे लोगों ने वहां बताया था। तो जब ये पानी की समस्या का को मैंने वहां देखा तो मैंने इस पर एक अभियान चलाया। ठीक है, मैं इसका एक बैकग्राउंड बता दूं, इसके पहले मैं एक अभियान चला करके सफल हो चुका था, और वो था स्टार्टअप इनोवेशन का एक अभियान। और स्टार्टअप इनोवेशन अभियान के बाद हमने ये 90+ वाला जो अभियान चलाया था वोटिंग का, उसके बाद मेरा ये थर्ड अभियान था वाटर कंजर्वेशन का। अभी हम वोटिंग के अभियान के बारे में बात करेंगे लेटर ऑन। तो मुझे वहां ये जो भूजल बढ़ाओ पेयजल बचाओ अभियान चलाया गया। अब आप देखिए मैंने इसको बात कैसे शुरू करी, इसकी एनालिसिस कैसे करी, लीडरशिप कैसे दिया। हमने एक पॉलिसी ये बनाया कि अगर कोई आदमी मेरे पास आता था पानी की समस्या के लिए तो मैं उन्हें कोई आश्वासन नहीं देता था कि मैं आपके यहाँ नल लगवा दूंगा, मैं आपके यहाँ बोरिंग लगवा दूंगा, जो कि हमारे यहाँ आम है कि हम लोग इस तरह के आश्वासन देते हैं और उसको हमारे परव्यू में, हमारे लिमिट में जो होता हम करते हैं। मैं उनसे ये कहता था आपके पास पानी की समस्या है, तो कहते थे हाँ। मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछता था पानी कहाँ मिलता है, पानी रहता कहाँ है, तो कुआं तालाब नदी में पानी रहता है। और ये कुआं तालाब नदी कहाँ मिलते हैं, ये गांव में मिलते हैं। तो मैं उनसे यही बात कहता था कि जब पानी कुआं तालाब नदी में रहता है, कुआं तालाब नदी में है, तो आप 50 किलोमीटर गांव से मेरे पास क्यों आए हो? आपको तो अपने गांव में ही पानी के लिए कुआं तालाब नदी के पास जाना चाहिए था। ये रीजनिंग हमने दिया। और मैं आपको बताऊं इसके पीछे जो बेसिक बात ये थी, हमने जब इसकी एनालिसिस करी तो वहां एक चीज पाया गया कि 30-40 साल पहले लोग कुआं तालाब और नदी से पानी लेते थे पीने के लिए, खेत की सिंचाई के लिए। What happened in the last 30-40 years, people started detaching themselves from these natural water bodies, कुआं तालाब नदी, and they started attaching themselves with the packaged water, with the bottled water. तो क्या हुआ, उन्होंने कुआं तालाब नदी से अपने संबंध तोड़े और कुआं तालाब नदी से संबंध जोड़े। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, उनके जीवन में क्या आ गया, पानी का संकट आ गया। ये समस्या थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को क्या करना था कि अगर हम यहाँ से इनका डाइवर्स करा दें, पैकेज्ड वाटर से, बॉटल वाटर से हम इनका डाइवर्स करा दें और इनको पुराना इनका संबंध कुआं तालाब नदी से जोड़ दें, तो हमारा काम बन जाएगा। ये सॉल्यूशन था। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज, थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटी वी टुक द मैसेज टू नियर बाई वाटर बॉडी। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हम लोग कुआं तालाब नदी के पास बार बार एक्टिविटीज के माध्यम से जनता को ले गए, उनकी पुरानी यादें ताजा करी, जिससे वो रीस्टैब्लिश कर सकें देयर ओल्ड रिलेशन। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी करी। इंटर डिपार्टमेंटल जो है कमेटी बना के लोगों को मोबिलाइज किया, जल चौपाल लगाया, वाटर बजटिंग की, ट्रेंचिंग की, डिगिंग कराई अभियान चला करके, ओल्ड वाटर रिसोर्सेज को जिंदा किया। ठीक है, नए तालाब, एक स्कीम नए तालाब खोदे गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया गया। केन रिवर, बागे रिवर और यमुना रिवर, 3 रिवर थे हमारे बांदा में। तीनों के किनारे 130 गांव थे। उन सारे गांव में हम लोगों ने फंक्शन करके लोगों को समझाया कि अगर कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद नदी के किनारे बसे होने से विकास कर सकता है तो इस 130 गांव का विकास हम करेंगे, उसकी हम लोग योजना बनाए और उनको गंदा या कोई गंदगी नदी में ले जाने से रोके। दीप दान कराया, जल मार्च कराया, ट्री प्लांटेशन, मेड़बंदी कराई,
जल पर कवि सम्मेलन मुशायरा कराया, हाथ से कविता कराई। इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग बार बार जनता को, आदमी को, पब्लिक को ले जाते थे वाटर बॉडीज के पास, जिससे उनके दिमाग में इसके प्रति लगाव अपना तो पैदा हो जाए। देखिए ये सर हैं, ये बहुत बड़े आईएएस अफसर हैं, श्री संजय भूस रेड्डी, ये हमारे यहाँ गए थे और हम लोगों ने इसको बहुत तरीके से टोपी ओपी लगा के इसका ड्रेस चेंज करके एक अभियान चलाए थे। ये शपथ दिला रहे हैं। और हम लोगों ने वहां वाटर एड को अपना एक पार्टनर लिया था, इंटरनेशनल पार्टनर। ये उसका है कि कैसे गर्मियों में पानी खत्म होता था, फ्लक्चुएट करता था। मतलब आप समझिए गर्मी में जिला अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाते थे, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी समस्या होती थी। इसके लिए जो है एक स्लाइड भी हमने बनाया हुआ है, ब्लॉग इसके लिंक दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसका लिंक दिया। इफ एनीबॉडी विश टू read in details whole, because it is not possible here to explain each and everything. So I have given a source so that anybody can go in details. Next please. देखिए ये लीडरशिप, जैसे हमने आपसे ये अभी बताया कि लीडरशिप का एट्रीब्यूट में हमने यहाँ क्या किया, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट। क्या हम लोगों से कनेक्ट करते थे, लोगों की बैठक करते थे, बात करते थे, डिफरेंट कनेक्ट करने के डिफरेंट तरीके अपनाते थे, ठीक है। और फिर उनसे कम्युनिकेशन करते थे और फिर हम कोऑपरेट करते थे आपस में। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो हमें ही, मतलब मैं ही लोगों को दे, मैं लोगों से बहुत कुछ चीजें लेता था। हमने कह दिया कि भाई सबको जो है इस पर जो मनी कंजर्वेशन पे कविता, मुशायरा, जादू, सांस्कृतिक कार्यक्रम का बड़ा अच्छा उनसे लगाता है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल जीरो करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकरेज, और उनका मैं प्रोडक्टिव और एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता था। और तीसरा नो कास्ट लो कास्ट, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूं। अब ये जो मैंने अभी भूजल बढ़ाओ पेयजल बचाओ वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसी तीनों पे आधारित था। देखिए पानी की समस्या जनता की समस्या है और पानी की समस्या केवल एक आदमी दूर कर सकता है, वो है आम जनता। ये समस्या आम जनता की है, अगर आम जनता इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेगी तो ये समस्या को दूर करना आसान नहीं है। और इसीलिए हमने ये सारे फार्मूले बताए, हमने बहुत सारे एक्टिविटी समय समय पर रेगुलर एक्टिविटी करता रहता था, और वो एक्टिविटी हंसी खुशी लव अफेक्शन वाला होता था, वो जश्न वाला होता था, जिससे लोग इंजॉय करें उनके दिल दिमाग में। मैं कहता था कि लोगों के दिल और दिमाग में मैं कुआं तालाब खोदना चाहता हूं, मौके पर जमीन पे एक बार कुआं तालाब नदी खुदे ना खुदे, सफाई हो या ना हो, लेकिन मैं लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब खोदना चाहता। ये जो मेरा प्रोवर्बियल सेंटेंस था, मैं हर लेक्चर में बोलता था। यदि एक बार लोगों के दिल और दिमाग में, सोच में कुआं तालाब का महत्व समझ में आ जाएगा तो मौके पर खोदेंगे ही खोदेंगे। और ये मेरा प्रोवर्ब बहुत काम आया। हमने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को कुआं तालाब नदी के किनारे ले गए और लोगों ने पानी में मेरे साथ खुल के काम किया। जनता पानी बचाने में आगे और डीएम साहब और उनकी टीम पीछे। अभी तक क्या होता था गवर्नेंस में, डीएम साहब आगे जनता पीछे, हमने इसको उल्टा, जनता आगे, जनता की भीड़ आगे और डीएम साहब का और उनका टीम पीछे। लेकिन कन्विंसिंग बात की हमने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पानी कहाँ रहता है, पानी का घर क्या है, कुआं तालाब नदी, तो अपने घर में ही तो मिलेगा पानी। और वो कहाँ रहता है, ये तीनों पाए कहाँ जाते हैं, गांव में। तो मैंने काफी काम इसमें किया और वहां के जो रिसोर्सेज थे, जो फंड्स थे, उनको चैनलाइज किया, पूलिंग करी, और इसको हमने इसमें रिसोर्सेज की 4-5 तरह से पूलिंग करी। ये बड़ा डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मनरेगा से मैंने काम कराया, गांव फंड से काम कराया,
और जो बड़े लोग थे उनसे कहा खेत का पानी खेत अपने खेत में एक तालाब खोलो। एक वहां खेत तालाब स्कीम थी एग्रीकल्चर विभाग का, उससे पूलिंग कराया, श्रमदान कराया। इस तरह से एक मुहिम चलाया, लोगों को कन्विंस किया और काम बना। आगे प्लीज देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने क्या किया, 6 अक्टूबर को वहां एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें लेखपाल, सचिव और ग्राम प्रधान की बैठक करके और एक माहौल बनाया हमने कि हमें पानी बचाना है। और हमारे 471 गांव थे, हर गांव में जल चौपाल और वाटर एड और वहां लोकल एनजीओ को अपना पार्टनर बना के हमने वाटर बजटिंग का एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया, इनोवेशन। ये जो पहला फोटो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि कैसे गांव में कितने खुशी, इसका आप फोटो से ही देखो कितना पॉजिटिव माहौल है। दूसरा, महिलाओं को जोड़ने के लिए हम लोग महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए उनको जरूर पार्टिसिपेट कराते। और हम लोग 471 गांव में अभियान चलाए, 34,732 लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया। इतने लोगों के दिल और दिमाग में हम लोग पानी बचाने का माहौल डाल दिया। उससे ये देखिए इतना 3930 3930 केएल कंजर्विंग कैपेसिटी क्रिएट हो गया और इतना केएल वाटर एनुअली हम लोग बचाने की क्षमता पैदा कर लिए। शुरू हो गया कहानी, मोटिवेशन, इंगेजमेंट, कनेक्ट, कम्युनिकेट, कोऑपरेट, पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ये जो हम देखिए, एक पानी, एक छत का पानी देखिए कैसे एक कुएं में जाकर के गिर रहा, धरती में जा रहा है। ये इसका एक नमूना है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए जो है हम लोग, ये तालाब है, ये कुआं है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले बांदा में तालाब की सूची नहीं थी, मैंने तालाब की सूची बनाई, 7800 प्लस कुएं मिले, ठीक है। और इसी तरह से तालाबों की सूची बनवाई, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, लगभग 2200 पब्लिक कुएं तालाब थे और इसी के इर्द गिर्द इतनी ही संख्या में प्राइवेट तालाब। तुम लोग ये देखिए, मैं खुद तालाब के किनारे जाता था, वहां बैठता था, कभी वहां संगीत कराता था, कभी बैठक करता था। और हम लोगों ने पेड़ जियाओ अभियान चलाया। देखिए ये पेड़ लगाने, क्योंकि अगर पेड़ जो है कंटेन करता है, बिना पेड़ और पानी का गहरा रिश्ता है। जल और जंगल, पेड़ और पानी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। यू विल नॉट बिलीव, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये मेरी 6 बजे सुबह की एक गांव का चौपाल है। देखो ये पीछे एक खपड़ेल मकान है गरीब का, जाते थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने सारी बैठकें जमीन पे की, कनेक्ट किया, दिल वाला कनेक्शन बनाया। जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच की दूरी को बिल्कुल कम कर दिया। यू कैन सी विथ दिस फोटो कैसे जनता के लोग एक जिला अधिकारी से, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। पीछे एक बैनर देखो, ये टंगा है, ये है। सुबह 6 बजे मैं इस गांव में, सुबह 5 बजे मैं अपने बंगले से निकल गया था और 6 बजे मैं ऐसे अक्सर सुबह 6 बजे गांव में जाता था। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे 8 ब्लॉक हैं। इन 8 ब्लॉकों का ये रिजल्ट है। मैं आपको नट सेल में रिजल्ट बता दूं कि मेरा 18 के मुकाबले 19 में, क्यों, बरसात का जो सीजन होता है, ठीक है, तो ये 18 में मैं अगस्त 18 में गया था, मैंने काम करना शुरू किया। फिर ये 19 में जो बारिश हुई, जब 19 की बारिश को नापा गया तो 18 के मुकाबले 19 में वाटर टेबल 1 मीटर 35 सेंटीमीटर ऊपर आया। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। क्रॉप प्रोडक्शन 18.5% बढ़ गया। ये पब्लिक डेटा है। क्या वही लीडरशिप प्रोवाइड किया, एक पॉलिसी बनाई और गवर्नेंस का जो तरीका था उसको चेंज किया, गवर्नेंस के तरीकों को चेंज किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की उसको, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी वेशभूषा भी पजामा कुर्ता में जाता था, चद्दर ओढ़ के जाता था, को लगे कि ये कलेक्टर हमारे बीच का कलेक्टर है। मैं जितने भी बैरियर होते हैं कनेक्शन बनाने में, मैंने सब दूर किए। यही बात नहीं, अभी मैं एक यहाँ 2 ब्लॉक ऐसे थे कि 17 में और 18 में बरसात के बाद दोनों ब्लॉक में पानी नीचे जाता था। ये बड़ा एस्टोनिशिंग रिजल्ट आया है।
जरा इसका एक अगला वाला लाल वाला भी हमने दिखाया था, नेक्स्ट इसका रिजल्ट, यस प्लीज नेक्स्ट करिए इसका, नेक्स्ट वन। हाँ देखिए ये जो लाल वाला चिन्ह है, ये नहीं इसके पीछे ये जो दो लाल ब्लॉक दिख रहे थे, ये हाईलाइट ये है कि 17 और 18 में दो ब्लॉकों में 2 साल बरसात होने के बाद पानी हमेशा ऊपर आना चाहिए, पानी नीचे गया। वो टेक्निकल है और ये टेक्निकल इशू है, लेकिन जब हमने ये काम किया तो देखिए हमारे में एक में ये इतनी बढ़ोतरी हुई। ये अपने आप में एक मतलब जिसको कहते हैं ना दैवी रिजल्ट मिला। क्या 17 में नीचे बरसात के बाद पानी ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। 17 में बरसात के बाद पानी नीचे गया 2 ब्लॉकों में, 18 में गया और 19 में बहुत जबरदस्त देखिए जंप आया। ये रिजल्ट है 3.1 मीटर और 2.43 मीटर दूसरे ब्लॉक। तो अगर आपकी नियत नीति और अच्छी मंशा है तो आपको रिजल्ट कई तरह के दैवीय रिजल्ट भी मिलते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। नेक्स्ट, ये बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। बहुत लोगों ने जाकर के, जब मैं बात करता था पता लगता था तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। बड़े बड़े लोग आए, भारत सरकार के सचिव आए, 2 दिन रह करके उन्होंने अपने आंखों से सब देखा। उसके बाद हमारे इस बांदा पानी के मॉडल को नेशनल लेवल पर लेक्चर कराया गया, लोगों को बताया गया। क्यों? ये पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला मॉडल था और यही रियल सॉल्यूशन है। दैट्स व्हाई इट गॉट नेम एंड फेम नेशनली इंटरनेशनली। नेक्स्ट अब देखिए रिफॉर्म इन बांदा जेल। फार्मूले, चीजें, स्टाइल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नो कास्ट, लो कास्ट, कन्वर्जेंस, pooling of the available resources and funds, and how to involve by inspiring, by motivating, by engaging, by empowering the stakeholders। हमने जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मंथली एसपी और डीजे के साथ जेल में जाना मैंडेटरी है टू सुपरवाइज द लॉज whether it is implemented inside the jail prescribed by different laws, जिससे कि वहां जेल में रहने वाले इनमेट्स को वो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए मिल नहीं। तो हम लोग जब पहली बार गए तो लोगों को चेहरे पे काली, लोग निराश, हताश, चेहरा काला था। पहले ही विजिट में मैंने ये सोच लिया था कि मुझे लोगों के चेहरे पे खुशहाली लानी है। तो मैंने इसमें बड़ी छोटी, मैं इसके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे एक्टिविटीज मैंने किए इसमें। और उस एक्टिविटीज में देखिए कैसे शुरुआत की। छोटा स्टेप ही सक्सेसफुल होता है, बड़ा स्टेप करोगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते। सबसे पहले हमारी बात क्या थी कि अगर जो जेल में है, हमने जेल को एक गांव माना कि एक विलेज है और जितने उसके बैरक थे मैं उसको मोहल्ला मानता था। तो हर इस जेल सुधार में हमारा था कैसे इनको हम इंगेज कर दें और वो इंगेज इनके लिए प्रोडक्टिव हो और इंजॉइंग हो, जिससे इनको आनंद आए। तो सबसे पहले मैंने इनको सुबह 4 बजे जगा के योगा कराना शुरू किया। जब योगा कराना शुरू किया तो इसी बहाने लोग रात सुबह 4 बजे जागते थे, उनकी जो दिनचर्या है ठीक हो गई और वो स्वस्थ होने लगे। इसके लिए मैंने एक योगा प्रशिक्षक भेजा, योगा ट्रेनर भेजा। उसने क्या किया, हर बैरक में 4 बंदियों को सिखा दिया। थोड़े दिन बाद वही उस बैरक में वही 4 बंदी जो ट्रेन हो गए थे योगा कराने। अब एक रूटीन तो ठीक से 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक उनका एक प्रोडक्टिव टाइम इंगेज हो गया, उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, उन्हें अच्छा लगने लगा। बांदा में ये चीज थी क्या कि वहां लोगों की सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत, तो हमने क्या किया, हर सैटरडे को 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता था। करीब 800 इनमेट थे, कैदी थे, उसमें 10, 20, 25 मंच था वहां एक, उस पर वो लोग कार्यक्रम करते थे, नाचना, गाना, बजाना, नागिन का बहुत बढ़िया एक्टिविटी करते थे और बकिया लोग सामने बैठ के देखते थे। तो उससे क्या हुआ, उनको एक इंटरटेनमेंट करने का, वीकली इंटरटेनमेंट का साधन मिल गया, उनकी ऊर्जा बढ़ने लगी और उसी में से कुछ लोग अपनी कला के अनुसार बार बार
भाग लेने लगे। तो मैंने पहला काम योग कराया, दूसरा जो है वीकली गायन वादन शुरू कराया। इसके बाद हमने कहा जिसको पता करो कौन क्या खेलता है, खेल जेल में शुरू करा दिया, तीसरी एक्टिविटी। फिर हमने कहा बहुत लोगों को पेंटिंग चित्रकला में है, वो एक्टिविटी शुरू करा दिया। कुछ इसमें कोई लागत तो है नहीं, कुछ नहीं था। चित्रकला में चार्ट चाहिए और ये पेन चाहिए, ये पैसा 2-4 हजार जेल में रहता और नहीं था तो हमने उसको अरेंज करा दिया। मतलब वही नो कास्ट लो कास्ट। इनको हमने फिर हमने कहा भाई साफ सफाई कंपटीशन करा दिया बैरक वाइज, जिसका साफ रहेगा उसको प्रमाण पत्र देंगे। तो हम लोगों ने इनको इस तरह से, मैं आपको क्या बता, इनको जो है बंदियों को कई तरीके से इस तरह से इंगेज किया। फिर इनको हम लोगों ने कहा इनके इंटरेस्ट की जितनी भी किताबें हैं, कोई रामायण पढ़ना चाहता, कोई कोई गाना गाना, इनसे किताब पूछो क्या क्या ये पढ़ना चाहते हैं, वो किताब खरीद के ला के दो और ये अपना समय पढ़ने में लगाएं। वो एक अभियान चलाया हमने। वहां पेपर और मैगजीन दिए कि इधर उधर बैठने के बजाय अपने टेस्ट की मैगजीन, मैं इनसे पूछता था कौन मैगजीन पढ़ोगे, कौन सा पेपर आपको अच्छा लगता था, वही सप्लाई कराता था। फंडिंग की कोई, जेल में इस सबके लिए सुविधाएं होती हैं, इसके लिए पैसा भी होता है, और जहां बहुत थोड़ा बहुत कम पड़ता था मैं किसी से उसको ट्रांसफर कर देता था। अब आप सोचिए बहुत छोटी छोटी ये एक्टिविटी करके हमने वहां करीब 12 एक्टिविटी की। फिर क्या किया, एक दिन में उस कैदी को बुलाता था, कैदी के 2 परिवार वालों को बुलाता था, अपने जेल का एक अधिकारी बैठाता था और उसके पूरे देखता था कि उसकी लीगल मदद कैसे करो। तो इस तरह से चार्ट बनाता था सबका। और फिर डीजे के यहाँ इसकी एक बैठक होती है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, उस डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मैंने कोऑर्डिनेशन करा दिया कि अगर कोई गलत फंस गया, किसी को कोई लीगल में दिक्कत आ रही है, जिससे ये कैदी यहाँ से बार बार निकल, मतलब उनको लीगल परसुएशन में दिक्कत ना आए और वो छूट के जाए। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स में मैंने नो कास्ट लो कास्ट किया। और मैं आपको बताऊं इसका रिजल्ट ये रहा कि हमारा 72 जेल है यूपी में, जब ये एसेस हुआ तो नंबर 1 का अवार्ड मिला हमें जेल रिफॉर्म में। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को ये अवार्ड मिलेगा, मैं इतना अच्छा, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा काम कर जाएगा। और प्रोफेसर नितिन सिंह को मैंने इनवाइट किया था फॉर इवेल्युएशन फॉर टू बांदा। वो आए थे, 2 दिन थे, उन्होंने मेरे 8-10 प्रोग्राम का इवेल्युएशन किया था। उसमें जेल रिफॉर्म था, वाटर कंजर्वेशन था, मेल न्यूट्रिशन था। तो उनको बड़ा, जब मैंने कहा साहब आप इसको देख लिए बताए, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा फीडबैक है और हमें नंबर 1 का। तो ये जेल, इसके भी जेल की पीपीटी और जो मैंने इस पर ब्लॉग लिखा है उसके भी लिंक ये दिए हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल जानकारी, कैसे स्टेप उठाया, क्या किया, ये ब्रीफ, मतलब ये तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग स्लाइड में और यहाँ है, तो यहाँ से आपको डिटेल मिल सकता है। नेक्स्ट। ये तो जेल रिफॉर्म ही है, आगे वही अभी इसी की बात कर रहा था। नेक्स्ट। अब हमें तो रटा है। नेक्स्ट। हाँ, अब ये जब इलेक्शन आया 2019 का लोकसभा इलेक्शन, तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत इंस्पायर्ड था। ये 2019 लोकसभा का इलेक्शन, ये मेरा 3rd अभियान था। पहला अभियान मैंने स्टार्टअप इनोवेशन का चलाया, बहुत शानदार हुआ। 135 स्टार्टअप इनोवेशन पूरे देश से आए और 3 दिन चला। वहीं से हमारा, हमारे टीम का और पूरे जनपद का एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन, इंस्पायरेशन हुआ। लोग ये समझने लगे कि ये जिलाधिकारी आए हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के जीवन को बदलना चाहते हैं, ये कॉन्फिडेंस मुझे वहां से मिला। उसके बाद मैं पानी पे काम करने लगा, क्योंकि वहां पानी से हर आदमी पीड़ित है। डीएम के पास जाते हैं, डीएम साहब मिलते नहीं थे या जो भी बातें थी, लेकिन मैं सबसे मिलता था, बातें करता था, समझाता था। तो फिर मैंने दोबारा जैसे ही स्टार्टअप इनोवेशन हीरालाल जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से।
हिलालाल जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है अच्छी तरीके से, नेटवर्क कट हो रहा है इसलिए। ऐसे हमारा जो कि यदि 2 बूथ पे 90% से मतदान ज्यादा हो सकता है, वही बूथ, वोटर वही हैं, बूथ का कमरा वही है प्राइमरी स्कूल का, और वोट देने वाले हैं। तो अगर पंचायत चुनाव में 90% बूथ पे हो सकता है तो लोकसभा में क्यों नहीं? बस यही हमने सबके सामने रीजन रखा। और मैंने वहां लोगों के जज्बात से बात की। हमने कहा देखो, आपको बांदा में इसलिए जाना जाता है कि आपके यहाँ बदमाश मिलते हैं, आपके यहाँ पानी नहीं मिलता, आपके चेहरे पे धब्बा है। और अगर हम लोग चुनाव में अच्छा काम करके पूरे देश में नाम रोशन कर लें तो ये हमारा जो बदनामी है ये घट जाएगी। और हमने एक नारा दिया, 1,90,90% हो मतदान, बांदा बने देश की शान। अब ये 90% कहां से आया? वहीं से लिया, क्योंकि 2 बूथ पे 90, एक पे 90 प्लस था, एक पे 91 प्लस था। तो ये हमने 80 प्लस क्यों नहीं लिया? हमारी नकल दे करके एक डीएम साहब ने 100% प्लस कर दिया। 100% प्लस होते नहीं है, वो नकल तो किए लेकिन उन्होंने वो नीचे वाले जैसे लाए। तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब वो तो एक डीएम साहब 100 प्लस कर दिए। तो ये 90 प्लस, वो 2 बूथ जो थे 90 प्लस वाले, कि हमें सारे बूथ 1400 से ज्यादा जो बूथ थे उस पर 90% से प्लस मतदान करना है। और हमने बहुत सारे नारे, 90% हो मतदान, बांधे देश की शान, ये टैगलाइन थी। खूब बढ़िया बैनर डिजाइन किए, ये देखिए हैंड बिल बढ़िया डिजाइन किए, ये टोपी डिजाइन किए। और इनके सबके खर्चे देखिए, हर विभाग में प्रचार के छोटे छोटे पैसे होते हैं। कहीं से बैनर बनवा दिया, कहीं से टोपी बनवा दिया, और एक माहौल बनाया। और इसके लिए हम लोगों ने इसकी बड़ी सिस्टमेटिक काम किया। हम लोग इसके लिए, जरा नेक्स्ट चलिए प्लीज, नेक्स्ट। हम लोगों ने इसके लिए सलाहकार समिति बनाई थी, लोकल और बाहर की सलाहकार समिति थी। संपर्क संवाद सहयोग से हमारे पास देखिए कैसे हमने प्लानिंग किया। 471 गांव थे, 5 जो हमारी जो 5 तहसील थी, 8 ब्लॉक थे। हर जगह के लिए टीम, क्या मॉनिटरिंग टीम, एजुकेशन टीम, एक बहुत बढ़िया प्लान चाक आउट करके हम लोगों ने एक माहौल खड़ा किया। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का, क्या हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूरे जनपद में टीम होती है, जिला अधिकारी के पास जिला सांस्कृतिक एक टीम होती है, एक शासनादेश है, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष है, जिससे उस जनपद के सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ाना, उनके से जुड़े लोगों की समस्याओं को दूर करना। तो मैं आल्हा, गीत, जादू, हम कहते थे अब हमारा अगला अभियान है चुनाव पे, तो सब उस पर आल्हा, गीत, संगीत ये सब बनाते थे। और गांव में बैठ करके आल्हा और संगीत, अभी लास्ट में मैं आपको एक नमूना भी इसका दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता था। तो इससे क्या हुआ, उत्सव का माहौल बना। और हमने ये बात की कि आखिर चुनाव में परसेंटेज लोकसभा में डाउन क्यों होता है? तो उस पता लगा कि लगभग 30% लोग कमाने कर तो हैं बांदा के, सूरत, अहमदाबाद, ये जगहों पे हैं। तो उनके बुलाने के लिए हीरू सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका।
हीरालाल जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ प्लीज वो वीडियो प्ले करिएगा प्लीज। ये वीडियो, हाँ ये वाला जी। Being addressed by Prime Minister Narendra Modi in Banda in UP. सारी मशीनरी होती है, वो चुनाव में ये करो, ये ना करो, ढिकना करो, फलाना ना करो, इसी में लगी रहती है। मुझे बताया गया कि हाँ, जिले के जो चुनाव के अधिकारी हैं, वे 100% वोटिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहूंगा कि जो बात मैंने सुनी, अगर वो सही है तो इलेक्शन कमीशन ने ये किस प्रकार से जन जागृति कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, राजनीति से परे होकर के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसे मेहनत करने वाले अफसरों की तरफ देखना चाहिए। और उसमें से पूरे देश में इस चुनाव नहीं तो आगे वाले चुनाव में ये क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं। Being addressed by Prime Minister Narendra Modi in इसको करो।
अभी आ गया सही तरह बोलिए। हाँ, आवाज आ रही मेरी? एक्सक्यूज मी। सर हाँ, आपकी आवाज अभी आ रही है सर, अभी आ रही है आपकी आवाज सर, बीच में आपकी आवाज चली गई थी सर। तो हाँ ठीक है, ये नेट प्रॉब्लम कर रहा था। तो ओके, तो हम लोग आगे बात को कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल 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 सर, आगे बढ़िए सर। हम लोगों ने वीडियो तक आपकी तो बात सुनी सर। हाँ, अच्छा, वीडियो तो ठीक से चला ना उधर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा कि लीडरशिप और पॉलिसी और गवर्नेंस को कैसे मैंने बांदा में एक नए स्टाइल में, एक देसी स्टाइल में, जिसको कहते हैं देसी गवर्नेंस, हमने जो है उसको वहां के लोकल, जिसको कहते हैं कस्टमाइज गवर्नेंस को बांदा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने उसे कस्टमाइज किया। और ये मैंने केवल 3 केस स्टडी की, बहुत सारे, जैसा कि शुरुआती दौर के वीडियो में आपने देखा, हमने वहां मेल न्यूट्रिशन पे काम किए, हमने वहां जो है खेती बाड़ी अरहर सम्मेलन किया, इतने प्रोग्राम किए, 20-22 एक्सपेरिमेंट किए और सभी के अमेजिंग रिजल्ट रहे। अब इस समय हम एक नया कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और ये रिवॉल्यूशनरी इनोवेटिव अप्रोच इन मेकिंग है और इसका नाम है मॉडल गांव। तो ये मॉडल गांव क्या है? जो हमने बांदा में काम किया, जो बांदा में काम किया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उसी को जब हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया, क्योंकि वो काम हम समय समय पे करते थे और अनऑर्गेनाइज था और उसका रिजल्ट भी हमें पता नहीं था। अब जब उसको हमने ऑर्गेनाइज किया तो उसी का नाम है मॉडल गांव। इस मॉडल गांव को एक प्रोग्राम के रूप में हम लोग चला रहे हैं। इसके प्रेसिडेंट है मॉडल गांव के मिस्टर मुनीस जी, और वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है। मैं इसका मेंटर हूं, एडवाइजर हूं, और इसके सीईओ है मिस्टर सौरभ लाल। ये कुछ नहीं है, हमारा ये सपना है कि भारत वर्ष का हर गांव मॉडल गांव बने, और इसको हम लोग बड़े सिंप्लीफाइड वे में 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। और हम चाहते क्या है? गांव की लाचारी, बेरोजगारी और गरीबी मॉडल गांव दूर करेगा। दूसरा ये है, हमारा जो सपना है कि मॉडल गांव के माध्यम से गांव और गांव वालों को हम धनी बनाना चाहते हैं। ये कैसे होगा? आईआईएम रांची या जितने भी हमारे आईआईएम सभी प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को सिखाते हैं, कैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, इफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे बढ़ाई जाए। एग्री बिजनेस के बहुत सारे सेंटर्स भी हैं। आईआईएम ने कई जगह पे सेंटर्स खोले हैं। आईआईएम लखनऊ में एग्री बिजनेस का सेंटर है। तो ये हमारा मॉडल गांव का जो अप्रोच है, ये विलेज मैनेजमेंट, ये टोटल मैनेजमेंट पे ही आधारित है। हाउ टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ विलेज एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी एक्शंस। अगर हम गांव के एग्री कृषि के से संबंधित जो भी गतिविधि है, जो भी कार्रवाई है, जो भी हम करते हैं, अगर हम लोग मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स लगा करके उसके मैनेजमेंट को इंप्रूव कर दें, इफिशियंसी को इंप्रूव कर दें, तो होगा क्या? इससे ये होगा, गांव एग्री से एग्री बिजनेस में कन्वर्ट होगा। अभी लोग एग्री करते हैं और जब वो एग्री करते हैं तो एग्री घाटे का सौदा है, उसका मैनेजमेंट खराब है। तो हमारा ये जो सपना है मॉडल गांव का, ये है विलेज मैनेजमेंट, टू इम्प्रूव द विलेज मैनेजमेंट सो दैट वी कैन कन्वर्ट एग्री ऑफ ईच विलेज इनटू एग्री बिजनेस। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। देखिए, ये लोग नारा देते हैं, शहर की लोग पलायन हुआ, गांव से देहात आए। हमारा उल्टा नारा है, चलो गांव। एक नई सोच है, एक नई पहल है। आईसीसीआई फाउंडेशन इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट तरीके से, इंक्लूडिंग फाइनेंशियली। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, हमारा विजन क्या है? गांव का चौमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज।
हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा मिशन है कि हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है। उस विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव के विकास का एजेंडा स्थापित करेंगे। अभी गांव में विकास की बात ही नहीं होती है, अनाप शनाप बातें होते हैं, टाइम किलिंग होती है। लोगों के पास टाइम है, उसका जो है क्वालिटेटिव और अच्छा उपयोग लोग गांव वाले अपने टाइम का नहीं करते हैं। तो हमने ये 25 पॉइंट का विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। उस 25 पॉइंट के विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से हम गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और लोगों के दिल दिमाग और सोच में गांव के विकास के 25 पॉइंट को स्थापित करेंगे। और हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर गांव में अच्छे लोग होते हैं जो अपना नुकसान करके पूरे समाज की भलाई करते हैं, गांव की भलाई करते हैं। ऐसे लोगों का हम लोग चयन करेंगे, उन्हें चेंज मेकर बनाएंगे और उनके मार्फत हम गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। ये संक्षिप्त में हमारा ये विजन और मिशन है। नेक्स्ट प्लीज। इसके हमने बताए 3 पार्ट है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए पार्ट 1 क्या है। पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, अभी हम बाद में विलेज मैनिफेस्टो को दिखाएंगे भी। ये पार्ट 1 है कि औरतें गांव पे बैठी हुई हैं और विलेज मैनिफेस्टो पढ़ करके विकास के एजेंडे पे बात कर रही हैं। पढ़ाई हो, सफाई हो, दवाई हो, कमाई हो, कम्युनिकेशन का हो, मार्केटिंग हो, विलेज मैनिफेस्टो हो, गांव स्थापना भी आई डिटेल। और दूसरा क्या है कि हर गांव से अच्छे लोगों का हम चयन करेंगे, जो हमारे अच्छे लोग होंगे, जिसके अंदर सोशल थॉट होगा, जो सामाजिक, जिसके अंदर सामाजिक काम करने का पैशन होगा। हम ऐसे लोगों को हर गांव में चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनको, पहला काम है गांव में ऐसे लोगों की पहचान करना, सिलेक्शन करना, और फिर हम उन्हें डेवलप करेंगे चेंज मेकर के रूप में। उन्हें हम डिफरेंट जगह पे भेजेंगे, जैसे जो डेवलप्ड गांव हैं या जो इस तरह के नामी ग्रामी एग्री में अच्छा काम करके इनाम पाए हुए हैं, हम उनके यहाँ उन्हें भेजेंगे। एजुकेशन विथ रिक्रिएशन वाला फार्मूला अपनाएंगे और इसमें जो खर्चा आएगा वो गांव के जो लोग जाएंगे पूल करेंगे। तो जब आदमी, इसके लिए प्लान हमारा ये है कि ऐसे लोगों को पहले जिले में जो अच्छा अच्छा काम करने वाले लोग हैं उसी जिले में जाएं और सीख के आए, अपने गांव में लागू करें एक बात। फिर हम अपने प्रदेश के अंदर किसी दूसरे जिले में भेजेंगे। रामशरण वर्मा जी बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं, जनपद बाराबंकी के हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, कक्षा 8 फेल, वो खेती के पुरोधा है, उनके यहाँ रोज भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे उनके यहाँ बुलाएंगे और इसी तरह के जो और लोग हैं उनके यहाँ भेजेंगे और उनकी आंखें खोलेंगे, उनके दिल दिमाग में एक उल्लास, एक मोटिवेशन, एक इंस्पायरेशन, इंपावरिंग करेंगे। और इसके बाद फिर एक विजिट करेंगे दूसरे स्टेट में, गुजरात भेजेंगे, हरियाणा भेजेंगे, राजस्थान, जहां अच्छे लोगों ने काम किया है, जाएंगे वहां रुकेंगे। तो क्या होगा, एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट होगा, एग्री के मैनेजमेंट को भी सीखेंगे और टूरिज्म का भी कॉन्सेप्ट होगा, रिक्रिएट भी करेंगे, देशाटन भी होगा, मेला देखने जैसा माहौल बनाएंगे। और इसके बाद एक तीसरा विदेशों में भी भेजेंगे, उन्हीं से पैसा, उनका पासपोर्ट बनवाएंगे, सारा मैनेजमेंट करेंगे ट्रेवल कंपनियों के माध्यम से, जाके विदेशों के गांव को देख आएंगे। अगर ये सब इतना विजिट कर लेंगे तो उनकी आंखें खुलेंगी, उनकी सोच बदलेगी एंड दे विल बिकम द परफेक्ट चेंज मेकर। तो ये हमारा चेंज मेकर पे सपना है जिसको कि हम लोग करेंगे। और इसका जो थर्ड पार्ट है, एक इसका जो पार्ट है, भाग 3 जिसको कहते हैं, ये है हर गांव का एफपीओ और एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। कंपनी एक्ट में गांव के लोग ही मिलके एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी अधिनियम में चेंज कर दिया गया है और इसमें एक रिक्वायरमेंट रखी गई है कि मिनिमम 300 मेंबर उस गांव के हों। तो सरकार उन्हें डिफरेंट प्रकार के फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रही है, 15 लाख तक सब्सिडी दे रही है, मैनेजर रखने का पैसा दे रही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिससे कि पूरा गांव मिलके वो कंपनी चलाए, पूरे गांव को फायदा हो। तो करना क्या है, सरकार ये चाहती है कि हर गांव में एक एफपीओ हो, अगर एक गांव में ना संभव हो तो एक न्याय पंचायत पे हो, ज्यादा से ज्यादा गांव वाले मिलके एफपीओ बनाएं। और एफपीओ क्या है, कंपनी है,
जैसे कमर्शियल कंपनियां होती हैं, वैसे सरकार चाहती है कि गांव की कंपनी बने और ये कंपनी एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करे, गांव के एग्री माइंडसेट को एग्री बिजनेस माइंडसेट में चेंज करे और गांव के गरीबी को धनी में कन्वर्ट करे। ये रोल होगा ये पीसी का, उसी को ये पीओ भी कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसको मैं अपनी भाषा में कैसे समझाता हूं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सब समझ लो कि अगर वहां बन गया गांव में तो एक 25 करोड़ की चमचमाती बहुत बढ़िया गाड़ी आ गई, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, क्लीनर चाहिए, मैकेनिक चाहिए। तो ये जो चेंज मेकर होगा ये उसका ड्राइवर होगा, ये उसका क्लीनर होगा, ये उसका मैकेनिक होगा। और वो ड्राइविंग अच्छी हो, मैकेनिक को बिगड़ने पे बनाने की जानकारी हो, ये पार्ट 1 है, दैट इज द विलेज मैनिफेस्टो, हाउ टू मेक ए गुड ड्राइवर, टू लर्न ड्राइविंग, वो विलेज मैनिफेस्टो से आएगा। तो ये जो पार्ट 3 को हम लोग मॉडल गांव का जो अभियान चला रहे हैं, और हमारा ये मॉडल गांव कुछ नहीं है, आप आईआईएम में या मैनेजमेंट स्कूल में थियरी पढ़ा रहे हैं और हम हैंड होल्डिंग करके बच्चों को मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे साथ इसमें अटैच हो जाएंगे, जो हमारे साथ काम करेंगे, तो आपके साथ थियरी पढ़ेंगे और हमारे साथ उसका प्रैक्टिकल करेंगे। कहीं ना जाना है, सब वहीं इंस्टीट्यूट से बैठ के हैंड होल्डिंग करनी है। और जब वो आपके इंस्टीट्यूशन से निकलेगा तो उसके दोनों हाथ में लड्डू होगा। अभी आप एक लड्डू दे रहे हैं एक हाथ में, उसको डिग्री देते हैं, और अगर हमारे साथ वो प्रैक्टिस करके अपनी कंपनी बना ले अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, मौसी के यहाँ या कहीं भी, तो जब वो निकल के जाएगा तो उसके दोनों हाथ में लड्डू होगा, एक हाथ में एमबीए का सर्टिफिकेट और दूसरे हाथ में एक कंपनी होगी, चलती हुई कंपनी होगी, उसका मॉरल अप होगा। और वो एम्प्लॉयमेंट सीकिंग पर्सन नहीं होगा, वो एम्प्लॉयर होगा, लोगों को रोजगार देगा। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन, ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब हमने बांदा में किया था, उसी के आधार पर हमने बनाया है। पहले वो अनऑर्गेनाइज था, एक जिले में है, अब इसको हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पूरे यूपी में, पूरे देश में लागू करने के प्रोसेस में है। सब कुछ हो चुका है, उद्घाटन हो गया, वेबसाइट बन गई, modelgaon.org, modelgaon.org ये इसका साइट है। 2-4 दिन में ये बिल्कुल अपडेट हो जाएगी, धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप के मैनेजमेंट के स्टूडेंट हमारे साथ ये जुड़े, हमारे साथ अटैच हो, तो हम लोग उनको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी देंगे, उनको कंपनी बनवा के और चलवा करके प्रैक्टिकल करा करके देंगे और आपसे वो सर्टिफिकेट लेगा। तो ये बहुत ब्रीफ में मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, इस पर बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। देखिए हमारा घोषणा पत्र है, अभी गांव में ना कोई डिमांड है, ना कोई सोच है, ना कुछ है, ये हमारा घोषणा पत्र है। देखिए इस पर ये 25 पॉइंट के एजेंडा है, ये 25 पॉइंट एजेंडा, सफाई, कमाई, हर गांव में एक दिन जो है स्थापना दिवस, ये 25 पॉइंट को हम लोगों ने, इन सारे बिंदुओं पर ये हमें घोषणा पत्र छपवाना है और गांव के किसी आदमी द्वारा छपवाएगा और अपना फोटो, नाम लिखा करके गांव में प्रचार करेगा और वो हमारा चेंज मेकर बनेगा। गांव के हर व्यक्ति के पास इस विलेज मैनिफेस्टो के एक पन्ने के साथ जाएगा, उसको इसके बारे में समझाएगा, जिससे गांव के हर व्यक्ति के मन में, सोच में, जानकारी में गांव के विकास का एजेंडा, मुद्दा आ जाए, उसके समझ में आ जाए, और गांव का हर व्यक्ति इस बात पे सहमत हो जाए कि नहीं, हम गांव वालों को, सभी को मिलके गांव का विकास करना है, गांव को आगे ले जाना है और गांव को खुशहाल बनाना है। ये बहुत सिंपल है, हमने जो भी काम किया बहुत सिंपल किया। देखो ये पार्ट 1 केवल सिंपल इतना है, पहले चुनाव प्रचार में यही वाला फार्मूला था। पहले गांव में जब
चुनाव ना होता था। एक चीज और मैं बता दूं, ये विलेज मैनिफेस्टो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो 1000 तरह के हैं, 2000 तरह के, उसमें एक इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये चार्टर ऑफ विलेज डेवलपमेंट है, ये गांव का एजेंडा है। इसको लोग उससे भी कंफ्यूज करते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। इट इज नॉट इलेक्शन मैनिफेस्टो। गूगल पे डाल करके कोई भी मैनिफेस्टो की स्टडी कर सकता। तो ये जो हमारा पहला स्टेप है ये है। दूसरा मैंने अभी चेंज मेकर वाला डिटेल में बताया था कि हम जिले में ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, सोशल थॉट प्रोसेस के लोगों को उस गांव से पहले जिले में घुमाएंगे, फिर प्रदेश में घुमाएंगे एक आध जगह, फिर दूसरे प्रदेश में, फिर विदेश में, और उसमें जो खर्चा आएगा घूमने में वो उन्हीं को पूल कराएंगे, वो पूलिंग होगी। तो ये है हमारा विलेज मैनिफेस्टो। कितना सिंपल है, एक पेज 1 रुपये में कलर छप जाता है। 2000 छपवा लो, पूरे गांव को, बिल्कुल पूरे गांव के लोगों के दिल और दिमाग में 25 पॉइंट का डेवलपमेंट का एजेंडा आप जिस तरह से चाहिए बैठ जाएगा, स्थापित हो जाएगा। एक बार उनके दिमाग में ये 25 पॉइंट बैठ गए तो इसके बारे में वो बात करेंगे, सोचेंगे, इसको पाने की कोशिश करेंगे। जब इसको पाने की कोशिश करेंगे तो विलेज डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। देखिए अभी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं और ये वीडियो वो नमूना प्रस्तुत करेगा बांदा का कि कैसे मैं कल्चरल प्रचार प्रसार में, मैं न्यूज में कभी ऐड नहीं देता था। न्यूज जो फ्री में एज ए डीएम हम छपवाते थे, हमारा रोज 4-5 न्यूज लगता था, क्योंकि वो डीएम का न्यूज छापते हैं तो उनका पेपर बिकता है, जो एक्टिविटी। लेकिन मैंने कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से, आल्हा से, संगीत से, जादू से, हमने कहा भाई हमारा ये थीम है, इस पर काम करो। सब लोग इतने ट्यून्ड हो गए। अभी जब हमने कहा कि भाई हम अब मॉडल गांव का एक कॉन्सेप्ट पर्सनल लेवल पे चलाना चाहते हैं, और बांदा वाले आप लोग सब जानते हो, मुझे वो बना के दो इस पर मॉडल। मैंने मॉडल गांव का टोटल लीफलेट, मोबाइल, अरे लीफलेट, अपने सारे कॉन्सेप्ट भेज दिए, और अब तक मेरे पास 5 वीडियो, गाना और अभी मुशायरा ये सब बन के आ रहे हैं। तो एक नमूना देखिए कैसे हमने छोटे छोटे कलाकारों को, हुनरदारों को, इंटरप्रेन्योर को मजबूत किया। और मैं करता क्या था, इन सबको सर्टिफिकेट देता था ये जिलाधिकारी की, इन्होंने इस पर गाना गाया और इनके अंदर ये हुनर है, मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ। वो सर्टिफिकेट इनके लिए काम करता था, वो इन्हें इंस्पायर करता था। पैसा मैं नहीं देता था, क्योंकि पैसा देने का कहीं इस तरह का स्कोप नहीं था, कहीं ऐसी फंडिंग नहीं थी। तो मैं उसको कैश, मैं सर्टिफिकेट तो दे ही सकता हूँ उसके हुनर पे, वो मैं देता था। जिलाधिकारी का सर्टिफिकेट पाके लोग बड़े खुश होते थे। तो जरा मैं इसको दिखाना चाहूंगा, प्लीज प्ले द वीडियो। नमस्कार, मैं विजेता। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ये वीडियो पूर्व जिलाधिकारी हीरालाल जी उल्टा मॉडल गांव अभियान चला रहे हैं। उल्टा ये देखना। मेरा भी बंद हो गया। क्यों? नमस्कार, मैं विजेता। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पूर्व जिलाधिकारी हीरालाल जी मॉडल गांव अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं अपनी कुछ पंक्तियां सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। गांव का विकास कराना है, भारत खुशहाल बनाना है। गांव का विकास कराना है, भारत खुशहाल बनाना है। अपने भारत को अब तो हाँ, अब आया। नमस्कार, मैं विजेता। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पूर्व जिलाधिकारी हीरालाल जी मॉडल गांव अभियान चला रहे इसे हैं, वीडियो अलग से जिसके प्ले कर, माध्यम से अलग से भी वीडियो भेजा हुआ। बात कर लो। गांव का विकास कराना है, भारत खुशहाल बनाना है। आप बोलिए कैसे अलग से प्ले कर। एक मिनट करने दो, ये तो खुद ही देख रहे हैं। मैं विजेता। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पूर्व जिलाधिकारी हीरालाल जी मॉडल गांव अभियान ये चला रहे टीम हैं, जिसके माध्यम से मैं अपनी पंक्तियां सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। गांव का विकास कराना है, भारत खुशहाल बनाना है। गांव का विकास कराना है, भारत खुशहाल बनाना है। अपने भारत
सोलर बिजली गांव में होगी, पानी की होगी सुविधा हो, नदी तालाब के साथ जिएंगे, सब मिलकर पेड़ लगाएं। इंटरनेट की सुविधा होगी, अब शिक्षित होगा व्यक्ति हो, गांव का विकास कराना है, भारत खुशहाल बनाना है, गांव का विकास कराना है, भारत खुशहाल बनाना है। नवाधिकार जिलाधिकारी बांदा श्री हीरालाल मानव सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। बांदा में नवाचार के आधार पर देश को मॉडल गांव से धनी खुशहाल बनाएंगे। महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा अब तो करना है, विदेश की चीजें त्याग करके अब हाथ से काम करना है। महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा अब तो करना है, विदेश की चीजें त्याग करके अब हाथ से काम करना है। गांव का नाम मॉडल गांव में रूप में अब रोशन करना है। बांदा खुशहाल बनाना है, भारत खुशहाल बनाना है, खुशहाल बनाना है, यही संदेश बताना है। भारत खुशहाल बनाना है, यही संदेश बताना है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट वन। तो लास्ट, थैंक यू, थैंक्स स्लाइड। तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर था इस सेशन का बात करने का, और आपने देखा कि मैंने सारी चीजों को कैसे देसी और देहाती स्टाइल में स्ट्रक्चर किया। और मैं आपको बता दूं, मुझे लोग अपने घर का मुखिया मानते थे, बॉस। मेरे पास आईजेडीएम बहुत पावर होता था, लेकिन मैं पावर को कभी उधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं पावर ऑफ लव को यूज करता था। लोग मुझे अभी भी मॉडल गांव, मुझे 8 महीना हटे हुए, मैं फरवरी में ट्रांसफर हुआ, करीब 10 महीना हो गया, और मैंने अभी 1 महीना पहले मॉडल गांव का टोटल डॉक्यूमेंट भेजा। उन्होंने कहा मुझे कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से इस तरह से मेरे पास लगातार गीत संगीत मिल रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा जो काम करने का स्टाइल था, देसी था, देहाती था, इंडियन स्टाइल में, और बांदा के लोकलाइजेशन के लोकल डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज था। तो मुझे बड़ा प्यार मिला, अपनत्व मिला, और हमने गवर्नेंस का एक नया तरीका वहां प्रयोग किया, स्थापित किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉक। और मैं आप सभी लोगों से ये ऑफर देता हूं कि आपके जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों मॉडल गांव से जुड़ने के लिए, वो आपके यहाँ थियरी पढ़ें और हमारे यहाँ उसका प्रैक्टिस करें। हम उन्हें एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी देंगे और उनको एक एफपीओ बनवा के और चलवा के भी देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद, IIM रांची को धन्यवाद, प्रोफेसर नितिन सिंह, प्रोफेसर हजारिका साहब को विशेष तौर से, जो आज ये बात करने का मौका मिला और अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद। धन्यवाद हीरालाल जी, हमारी भी बहुत खुशी है कि आपने आके आपके स्कीम्स के बारे में बताया और कैसे आपने प्रैक्टिकली काम किया है उसके बारे में बताया, क्योंकि अब तक हम लोगों ने थ्योरी के बारे में बहुत सुना है, पर हम लोगों ने ऑन ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट किया है। खासतौर से बांदा जिला के बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहले तो मैं सबसे पूछना, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद हिंदी और वुड यू लाइक मी टू शिफ्ट इन इंग्लिश? No, Sir, Hindi is definitely comfortable. Okay, definitely.
तो बांदा जिला के बारे में बताना चाहूंगा। बांदा जिला यूपी के बुंदेलखंड इलाके में है, जो कि भारत के मतलब लीस्ट डेवलप्ड एरियाज में से कंसिडर किया जाता है। आपने बुंदेलखंड के बारे में सुना होगा तो आपको नाम याद आता होगा झांसी का, जहाँ पे अभी तो रिसेंटली थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। कुछ कुछ वहाँ पे यूनिवर्सिटीज आए हैं, कुछ प्रोजेक्ट आए हैं, पर फ्रीक्वेंटली वो एरिया जो है, जो एमपी और यूपी के बॉर्डर में जो एरिया है बुंदेलखंड का, वो बहुत ही नेग्लेक्टेड और अंडर डेवलप्ड एरिया था। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पानी की किल्लत वहां पे बहुत ज्यादा थी, और वहां पे वो चंबल की घाटी वहां पे है, केन और बेतवा नदियां वहां से जाती है। और वहां पे दूसरी प्रॉब्लम है आपकी सॉइल इरोजन की, कि वहां पे बहुत ज्यादा आपका सॉइल इरोजन होता है, और जो पानी जो है वो बह जाता है, और वहां पे खेती नहीं हो पाती है। जो मतलब टॉप सॉइल है वो बह जाता है। तो वहां पे कोई भी काम करना, वो आप लोगों ने तो सुना होगा, चंबल के डाकुओं के लिए वो एरिया फेमस था, पर अभी उस पे वहां पे जाके डेवलपमेंट का काम करना ये बहुत बड़ा स्टेप है। वहां पे रिसोर्सेज बहुत ही कम है। हमेशा से एक बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया रहा है, रिसोर्सेज बहुत ही कम है, और इस बीच इतने सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना बहुत ही प्रेजवर्दी बात है। और इन सबसे बड़ी बात है कि उन स्कीम्स को लोकल एरियाज के लिए कस्टमाइज करके डेवलप करके इम्प्लीमेंट करना एट नो कॉस्ट और लो कॉस्ट इनिशिएटिव्स। क्योंकि बहुत सारे पैसे अगर आपको हो तो आप काम कर सकते हैं, पर अगर आपके पास रिसोर्सेस कम हो फिर भी काम करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू हीरालाल जी। हमारे कैंडिडेट्स अगर आपको कुछ सवाल पूछना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग। जी, क्वेश्चन प्लीज। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी आप जी। जब ये अपनी स्कीम्स लागू कर रहे थे उस टाइम पर आपको ऑपोजिशन कहाँ से सबसे ज्यादा फेस हुआ? देखिए, सबसे ज्यादा अपोजिशन अपने अंदर होता है। सब अगर आप अपने अंदर के जो अपोजिशन है उसको जीत लेंगे तो बाहर का अपोजिशन काम नहीं करता। और इसीलिए कहा जाता है कि घर का बेदिया लंका ढाबे। मतलब जो अगर मैं जब पहला स्कीम लॉन्च किया ये कि मैं स्टार्टअप इनोवेशन करूंगा, तो 1 महीना तैयारी करने के बाद हमने सोचा ये तो बड़ा झमेला है, क्यों करें नहीं करें, हमने ड्रॉप कर दिया। फिर एक दिन पता नहीं कहाँ से आई, चलो डेट फिक्स कर देते हैं, जैसा होगा देख लेंगे। तो मैं पहला प्रोग्राम जो स्टार्टअप इनोवेशन का किया था, मैं अपने आप के अंदर से लड़ रहा था। ठीक है, जब अंदर से लड़ रहा था और मैंने जब डेट फिक्स कर दी और हो गया, वो इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ। वहां के लिए, बांदा के लिए नहीं, पूरे यूपी का वो एक नजीर बना। और बांदा का तो बना ही बना, बुंदेलखंड रीजन का बना। उसके बाद मैं मोटिवेट हुआ, जनता मोटिवेट हुई, और सबसे ज्यादा वो जो हमारे अधिकारी मतलब ना काम ना करने की इनर्सिया, या उनके जो बहुत सारे दिक्कतें पैदा हो रही थी मेरे काम की वजह से, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, और बहुत सारी चीजों में जो दिक्कत हो रही थी वो सब मोटिवेट हो गए, वो मेरे फॉल इन लाइन हो गए। दूसरी बात, जब मैं ये काम करना स्टार्टअप इनोवेशन के बाद फिर पानी का अभियान चलाया, पैरेलल में चलता रहा। फिर उठा लिया जब ये आपका चुनाव आ गया, चुनाव में। और जब 25 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत 2 मिनट तक, अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, उसके बाद तो फिर पूरा जनपद फालन कहते हैं ना, हो गया पूरा जनपद, कि ये डीएम साहब की बात जब प्रधानमंत्री जी को पसंद आया कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब रही बात विरोध का, देखिए विरोध अगर ना हो तो मजा नहीं आएगा। 99% मुझे विरोध नहीं झेलना पड़ा। उसके पीछे कारण क्या होता है, देखिए आप जब जनता में रहते हैं और चाहे एक परिवार में रहते हैं तो आपको हमेशा टेस्ट देना पड़ता है। आदमी आपकी नीयत पे टेस्ट करता है, आपकी ईमानदारी पे टेस्ट करता है, आपकी मेहनत पे टेस्ट करता है। जब लोग देखते थे कि ये जिलाधिकारी सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे 1 घंटा यात्रा करके 50 किलोमीटर 6 बजे तालाब में पूजन करने चला जाता है, जिलाधिकारी तो दिन में नहीं जाते थे, तो लोगों में एक मैसेज जाता था कि ये जिलाधिकारी कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, ये दिल और दिमाग से जनता के लिए काम करता। तो अब मैं आपको बताऊं, मैं अपने अच्छे सोच, मेहनत, ईमानदारी और गुड डीड से जनता के दिल और दिमाग में घुस गया। लोग मेरे ऊपर विश्वास करने लगे और मुझे कहीं खास अपोजिशन नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत आता था वो मैं टैक्टिस जानता था,
लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस में लिए रहता था। कुछ पत्रकार बंधु थे जिनके अवैध काम रुक गए थे, वो लोग 1 साल तक मेरे 3-4 पत्रकार थे, कुछ भी होता था मेरा विरोध लिखते थे। 1 साल बाद वो खुद ही आए, कहें सर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। उनको शर्म आ रही थी कि उनका फोटो देखेंगे तो लोग उन पर टांट कसेंगे। हमने कहा ये माहौल आपने, हम अपने विरोधियों को भी कभी, हम चाहते डीएम थे एफआईआर कर देते, झूठ लिख रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना है विरोधी ही आपका सबसे ज्यादा, आपके अच्छे काम का सबसे ज्यादा प्रचार विरोध करके विरोधी ही करता है। तो विरोधी हमेशा होना चाहिए। आपके अच्छे काम का पर जब वो आपका विरोध करेगा कि डीएम खराब है, तो जनता उस पर छानबीन करेगी, और जब जनता छानबीन करेगी तो उसकी बात झूठी साबित होगी और आपकी अच्छाई उन सभी के दिमाग में चिपक जाएगा। तो मुझे विरोध का बहुत ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा, और जो थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा, मैं लोगों को समझाना, बुझाना, चलाना, बदलना जानता हूँ। सर मेरा एक सवाल था, क्योंकि यूपी में क्राइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मतलब जौनपुर से मेरी फैमिली है तो थोड़ा बहुत तो जान लेता हूँ मैं। और आपने जेल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया। जेल में काफ़ी ज़्यादा मतलब जाना लोग प्रेफर नहीं करते हैं जहाँ तक ऑफिसर्स की बात होती है, और आपने काफ़ी मतलब डिटेल में डिस्क्राइब किया कि आप कैसे गए और योगा वगैरह को प्रिस्क्राइब किया। सर पहली चीज़ आपका मोटिवेशन क्या था इस चीज़ के लिए, और दूसरा सर कोई ऐसा इंसिडेंट या चैलेंज जो आपने फेस किया हो जो कि मतलब बाकी सब इंसिडेंट से ज़्यादा आपको याद हो, वो आप शेयर करेंगे तो सर मुझे भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा सर। देखिए जैसे बात सही है, तो जेल रिफॉर्म मैं सुना करता था, किरण बेदी जी ने जेल में रिफॉर्म किया, उनका बड़ा नाम है, ये है वो है, तो मेरे दिमाग में था किरण बेदी जी ही क्यों करें, हम क्यों ना करें एक बात। और पहली बार जब मैं गया वहां और उनके चेहरे पे काली और ये सब चीजें देखा, अब रही बात तो मुझे लगा कि यहाँ भी मैंने गांव को ये मतलब पूरे जेल को एक गांव मान लिया, बैरक को मोहल्ला मान लिया। दूसरी बात यह है, मैं आपको बताऊं, जब मैं पहला स्टार्टअप इनोवेशन का 28, 29, 30 जनवरी 2019 को हमने स्टार्टअप इनोवेशन जब पहला किया था, तो मैं आपको बताऊं तीनों दिन इतनी भीड़, इतना शानदार, उसका भी मेरे पास वीडियो है, मैं समय अभाव के कारण नहीं दिखा पाया। लोग मेरा इतना सेल्फी लेते थे मेरे साथ, मैं खड़ा हो जाता था 50 लोग सेल्फी लेते थे। तो मुझे लगता था कि ये जो हीरो का जो रोल है मुझे वो मतलब पोजीशन मिली, वहां से मुझे मोटिवेशन ये मिला कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। अच्छा मेरी जो अच्छी सोच थी, मेरा अच्छा एक्शन था, मेरा जो ईमानदारी से उनके प्रति काम करने की श्रद्धा थी, वो जब सेल्फी लेते थे, मैं रास्ते में मैं सबको फोटो सेल्फी, जिसको जो मेरे साथ फोटो खिंचाने से अगर किसी को खुशी मिल रही है तो मेरा क्या जा, रोज शाम को मेरे साथ फोटो खिंचाते थे, जा करके फेसबुक पे डालते थे सेल्फी विद डीएम सर दिस दैट, उससे भी उन्हें खुशी मिलती थी। तो वहां से मेरा मोटिवेशन ये हुआ और मेरे अधिकारियों का मोटिवेशन हुआ कि जंगल में मंगल हो सकता है। स्टार्टअप इनोवेशन ने साबित कर दिया। और सेकेंड इवेंट जो हमारा था ये चुनाव का, उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने भाषण में मुहर लगा दी, और फिर वो मोटिवेशन उसी दिशा में बढ़ता चला गया, और वो रेखा अपने होता है ना, जिस रास्ते पे चलो फिर उसी में मजा आने लगता है। तो ये था मेन बात। जी थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन सर? जस्ट वन मोर। आपने जो स्कीम्स चलाए थे और जैसे लोगों को कल्चरल इवेंट्स के साथ पास लाया था, क्या ये लाइक लॉन्ग टर्म अब प्रैक्टिस हो रहा है और क्या ये होता रहेगा? ये स्ट्रक्चर है क्या? देखो ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस नहीं हो रहा है और ये होना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता है और इससे पैसा गरीबों के पेट में जाता है, इसका गरीबों को लाभ मिलता है, हमारे देश की जो कल्चरल एक्टिविटी है उससे मजबूत होता है, ये सारी बातें होती हैं। क्योंकि मैं पहले कल्चरल विभाग में रह चुका हूं तो मुझे जानकारी थी, उसका मैंने उपयोग किया, मुझे पता था कि किस एरिया में कौन कौन कल्चरल एक्टिविटी होती है। लेकिन जहां मुझे दांव मिलता है
मैं इस बात को रखता हूं कि देखिए मैंने ये नमूना क्रिएट कर दिया, अगर इसको पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रचार प्रसार कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से हो तो ये सबसे सस्ता, टिकाऊ, मजबूत, इफेक्टिव माध्यम है। तो इस दिशा में सोच है और प्रयास भी है और सरकार करती भी है। ऐसा नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से प्रचार होता है, लेकिन हमने जो इनिशिएटिव लेके किया उस तरह का थोड़ा कम मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा मैंने ही किया, कम मिलता है। इस दिशा में प्रयास हो रहा है। सर एक चीज बस मैं एक कमेंट देना चाहूंगा कि सर मतलब आप जो ये कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं और जहाँ तक मतलब योगी जी का भी है सवाल है, उन्होंने भी फिल्म सिटी खोला है अभी और बहुत कोशिश कर रहे हैं वो उस लेवल पे लाने का जिस तरह का मुंबई में है। प्लस भोजपुरी सिनेमा वैसे ही काफी नामचीन हो चुका है, अगर मालिनी अवस्थी और रवि किशन की भी बात की जाए तो। सर डेफिनेटली सर आपका जो ये एक स्टैंड पॉइंट है जो आपने लिया है कल्चरल ग्रोथ का, सर उससे न केवल यूपी को बल्कि इंडिया को काफी कुछ टैलेंट मिलेगा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच एन अमेजिंग इनिशिएटिव्स। वी ये जो रियली नीड लड़की ऑफिसर्स लाइक यू सर। ये जो लड़की थी विजेता, इस तरह से मैंने 3 लड़कियां चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। ये गरीब घर की लड़की है और बहुत गरीब है। ऐसे मैं घूमने जाता था, कल्चर जहां जाता था प्राइमरी गया, एक छोटी सी लड़की 10 साल की बढ़िया हारमोनियम पे बजा रही थी और खूब बढ़िया गा रही थी। मैंने मेरे नजर में मैंने कहा तुम्हें मैं ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा। उसको हर ब्रांड एम्बेसडर का सर्टिफिकेट दिया। और अंजलि विजेता, उस छोटी लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है, 3 को मैंने इलेक्शन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, किताब में छपवा दिया, रोज पेपर में छपने लगे। और हम ये कहते थे कि हम डेंटिंग पेंटिंग वाला हीरो हीरोइन बॉम्बे से नहीं बुलाएंगे, हमारे हीरो हीरोइन ये सब बच्चे हैं जिसका टैलेंट है। और बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों को पसंद भी आया, लोगों का जुड़ाव भी हुआ, लोग मुझे बहुत मानते भी थे। अभी भी उनका अफेक्शन मुझसे टूटा नहीं है। 10 महीना हटने के बाद लोग मुझे बहुत याद करते हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू हीरालाल जी, आपने इतने सारी बातें बताई आपकी जर्नी के बारे में, आपके स्कीम्स के बारे में और आपके काम के बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आगे भी आपसे बात होती रहेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर इनिशिएटिव्स एंड आल्सो द मॉडल गांव फॉर द न्यू इनिशिएटिव्स, अपकमिंग इनिशिएटिव जो आ रहे हैं। सौरभ लाल जी आपको भी बहुत धन्यवाद सारा कोऑर्डिनेट करने के लिए। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सो मच। कल सुबह we'll meet everyone again tomorrow at 10 a.m. in the morning with a session by me this time for a change. Instead of seeing me for 5 or 10 minutes, you'll be seeing me for 1.5 hours. I'll be talking about delegated legislation, something which is not really talked about, something which is very important, and it is there where we will be seeing what is actually the power in the hand of executive and executive officers like the district magistrate and the people like that, and why it is so important. So see you all in the morning. Have a great evening. Thank you Hiralal ji again. थैंक यू पूरी टीम को। और मैं पुनः कहूंगा आप अपने बच्चों में मेरे मॉडल गांव को बताइए और हमसे जोड़िए। हम उनके दूसरे हाथ में लड्डू रखने को तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल हीरालाल जी, और मुझे आशा है कि सब लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं वो भी जाके बताएंगे, और जो भी मतलब उनके गांव में भी बताएंगे कि अगर वो लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो मॉडल गांव के थ्रू जा सकते हैं। डेफिनेटली। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। Thank you for today, everyone. Thank you. ऑर्डर ऑर्डर करो ये आदत है। समझ गया किसी इधर इसके कोई मतलब जैसे नहीं सब इस रूप में आए कहीं